Very good morning to one and all. Good morning, dear students. So, students, today we are going to discuss about the exercises of lesson number 6. Okay, class 3, subject EVS, lesson number 6, families and families. So, as you know that we have already completed this lesson. Okay, I explained it very well and you understood. I hope that also you understood very well. Okay, so the question answer, I mean exercise, let's revise means the ending portion of this lesson just we want to discuss here. Okay, in this period. So students, first of all open your book and page number, see the page number 45. Okay, page number 45, page number 45. Just I want to explain here the question and answer in a brief. Just concentrate there and let's try to listen carefully. Okay. So dear students, in a lesson wise, there is the first question given here in your book. Just open the book and concentrate and try to solve all the question answer. Okay. Just we have seen that the parents of mother are called maternal, and that portion I explained already in the last previous period. I hope that MCQs related to this topic or this lesson you done very well in your textbook. Okay, the long question in this period I will explain or I will write on the board. So before that, just I am telling the MCQs, just concentrate there and check out it is right or wrong. Now the first one given there in your textbook, so the put a tick on the correct option. Okay, so the first one, parents of mother are called blank space grandparents. Okay, so what will be the first answer? First answer, actually just I am telling you because that portion I have explained. Okay, the parents of mother are called. Now four options given there for you: maternal, paternal and identical. So the mother's parents means it will be maternal grandparents. That will be correct answer for first one. Now the second one, your father's sister is your. Now four options also provided for you for the second statement. Your father's sister is your sister, grandmother or aunt. So sorry, three options are there. First sister, second grandmother and third means C, aunt. So aunt will be the correct option. You have to click on the circle which is in front of aunt word. Okay. Now then number 3, grandparents from the blank space generation. Okay, so here is also three option provided for you. First one second, A second, B third and C first. Okay, so first means option number C will be the correct. So just you have to click it, आपको पेंसिल से क्लिक करना है. Okay, then we have seen the differentiate between the following means the first one was nuclear and joint family. न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली क्या होती है, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, ये आपको लिखना है. सो जस्ट यू नो दैट वी हैव लर्न अबाउट द जॉइंट and nuclear family and it is also shown by the picture in your textbook. Just observe that and point out the main points means point out the difference की जो points से आपको छाटना है और निकालना है. That portion also I have explained in the last previous period. Okay, on the board I have explained it, I have wrote it. I hope that you all will done that work means written work related to the B section. Now the second one, paternal and maternal grandparents. Okay, so just you have to classify, you have to differentiate. आपको different दोनों में अंतर क्या है वो लिखना है कि paternal और maternal grandparents क्या होते हैं. ठीक है, paternal means the father of means the parents of father. Okay, and maternal means the parents of mother. So just you have to write there the differences into two sentences you can write. Okay, so it is very easy task.
बहुत ही सरल और इजी टास्क है. यू कैन इजीली राइट इट in your notebook. Okay, because of this is the long question, just you have to do that activity in your notebook. Okay, so students, that was the portion. Then number C, this one also we have seen in the last period. Write true or false for this statement. आपको जो ट्रू और फॉल्स सी वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बुक में, इसको इसके ऊपर ऑब्जर्व करना है, कंसंट्रेशन करना है. ठीक है ना. इसमें जैसे दिया है राइट T for true and F for false statement. Okay, there are 4 statement given for you and the blank space is also there leave for you. So just you have to fill it by T and F, means T for true and F for false. Okay, so the first one given there, people living in a family are called family members. Okay, obviously that will be a correct, means right one. पीपल लिविंग इन अ फैमिली, जो पीपल फैमिली में रहते हैं उसे हम फैमिली मेंबर्स कहते हैं. सो दैट इज द ट्रू, मीन्स टी विल बी देयर. नाउ द नेक्स्ट वन, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑलवेज रिजेंबल ईच अदर. ओके, ऑलवेज, दैट वर्ड ऑलवेज रिजेंबल मीन्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ईच अदर. सो इट विल बी फॉल्स, मीन्स एफ विल बी देयर, नॉट ऑलवेज. ओके, सो नंबर 3, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हैव अ सेट ऑफ कस्टम्स. ठीक है, जैसे हम समाज में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, अपने नेबर या फिर सराउंडिंग में देखते हैं. ठीक है ना. तो उसमें क्या होता है कि हमारे फैमिली में बहुत सारे कस्टम्स है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, और वो क्या करते हैं कि अपने जो कस्टम्स है, उनकी जो परंपरा है वो फॉलो करते हैं. ओके, सो दैट विल बी अ ट्रू, मीन्स नंबर 3 सेंटेंस विल बी ट्रू. Now number 4, children born to a mother at the same time are called twins. ठीक है ना. ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा. ठीक है ना. ट्विंस मीन्स जुड़वा. चिल्ड्रन बोर्न टू अ मदर, यानी एक मदर 2 चिल्ड्रन को एक साथ जन्म देती है, उन्हें ट्विंस कहा गया है. ठीक है. तो दैट विल बी अ ट्रू, मीन्स टी फॉर ट्रू. नाउ आफ्टर दैट नंबर डी सेक्शन वी विल सी. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, अभी जो डी सेक्शन है ये आपको नोटबुक में लिखना है बेटा. ओके, डी में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज अ फैमिली. व्हाट इज अ फैमिली. फैमिली क्या होती है. ठीक है ना, यानी परिवार क्या होता है. तो इसका आंसर आप हमें लिखना है. जस्ट यू हैव टू राइट व्हाट इज अ फैमिली. अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. Okay, we can family is a group of people. Okay, family क्या है, एक लोगों का एक ग्रुप है. ठीक है ना, समूह है. who are related to one another. who are related to one another. ओके, यानी एक में से क्या है, वो रिलेटेड है. ठीक है ना, संलग्नित है. देन बाय बर्थ, मैरिज और एडॉप्शन. बाय बर्थ, कॉमा, मैरिज और एडॉप्शन. ठीक है ना. जैसे बर्थ से, जन्म से, या फिर मैरिज, जैसे विवाह के बाद में हमारे घर में नई भाभी, नई बहू, नई दुल्हन आती है, तो वो क्या बनती है, हमारे फैमिली का हिस्सा या फिर मेंबर बनते हैं. ठीक है ना. या फिर एडॉप्शन. ठीक है ना, मीन्स किसी को दत्तक लेना. ठीक है ना. तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जो फैमिली मेंबर्स हमारे घर में इंक्लूड होते हैं, उन्हें हम फैमिली, कंप्लीट फैमिली कहते हैं. क्लियर. नाउ द सेकंड वन गिवन हियर, हु आर योर ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, हु आर योर ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स किसको कहते हैं. सो एक्चुअली इट इज आस्किंग द क्वेश्चन फॉर यू, मीन्स आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु आर योर ग्रैंड पेरेंट्स.
आपके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है। ओके, मीन्स योर who are your grandparents, okay, parents. Grandparents are parents are or grandpa and grandma or elder or grandfather and grandmother. Okay, the answer is our grandparents are our grandfather and grandmother. Okay, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कौन है, हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, जस्ट यू हैव टू राइट इट। आपको क्या करना है, ये नोटबुक में लिखना है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स कौन से हैं, हमारे जो आजी आजूबा, ओके ना, सो नाना नानी जिसको बोलते हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। क्लियर, सो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, मीन्स नंबर 3, what is the family tree? Okay, so just I am erasing this first one, I will write here the second number 3. Okay, number 3, what is the family tree? What is the फैमिली ट्री? फैमिली ट्री क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है इन द लास्ट, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, जस्ट आई वांट टू वी हैव टू राइट हियर द आंसर प्रॉपर। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द फैमिली ट्री? फैमिली ट्री क्या होता है, ठीक है ना। सो द फैमिली ट्री वी हैव सीन, सो एक्चुअली फैमिली ट्री शो द जनरेशन। ओके, क्या करता है हमें फैमिली ट्री की जनरेशन बताए, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। वी कैन राइट फैमिली ट्री is that shows which show means दिखाना, the relation between generation, which show the relation of family members and generation, relations of family members okay and generation members, generation to generation we can say, generation to जनरेशन। ओके, मीन्स एक्चुअल में क्या करता है फैमिली ट्री, हमें क्या बताता है बेटा, द सोर्स, इट इज अ सोर्स, एक ऐसा सोर्स है जो शो करवाता है, मीन्स दिखाता है, क्या दिखाता है, रिलेशंस ऑफ फैमिली, फैमिली के रिलेशंस क्या है, ठीक है ना, फैमिली मेंबर्स के रिलेशन क्या है, जनरेशन टू जनरेशन, यानी ये फर्स्ट जनरेशन, जैसे हमने देखे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, ठीक है ना, हमारे ग्रैंडपा से लेकर हमारे जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, हमारे या फिर हमारे अंकल आम से लेकर सारी चीज़ें आपको फैमिली ट्री में दिखाई गई। सो दैट इज द फैमिली ट्री आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो इट शोज अस द रिलेशन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, क्या करता है, फैमिली मेंबर्स में रिलेशन शो करवाता है। क्लियर,
So now dear students, this is the fourth one actually from D section. Okay, D का अभी fourth one देखने जा रहे हैं. What is the family resemblance? This is the question. Okay, नंबर 4 क्वेश्चन क्या है? फैमिली रिसेम्बलेंस क्या होता है, ठीक है ना. अब इसमें हमने देखे थे कि जैसे तंतु तंतपना बोलते हैं, ठीक है, मीन्स सिमिलरिटी वी कैन सी. जैसे आपके मम्मी के ऊपर दूसरा बच्चा या फिर बच्ची, ठीक है ना, आपकी बहन बोलते हैं ना सराउंडिंग के लोग की ये अपने मम्मी पे गया है, ये अपने पापा पे गया है, ये अपने मौसी पे गया है, ठीक है ना. तो लाइक में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी या फिर आनुवंशिक गुण होते हैं जो उन गाइस में या फिर उन पर्सन्स में देखे जाते हैं, तो उसी ही रिसेम्बलेंस कहा जाता है. जैसे देखते हैं इसमें मेंबर्स ऑफ द फैमिली मे हैव मेनी सिमिलर फिजिकल एंड फेशियल फीचर्स, ठीक है. उनमें क्या है, फिजिकल और फेशियल कुछ सिमिलर फीचर्स होती है, उनकी विशेषताएं होती है, ठीक है ना, और इसीलिए उसे फैमिली रिसेम्बलेंस कहा जाता है. क्लियर. नाउ द सेकंड वन, डिफाइन द टर्म ट्विंस. ट्विंस की टर्म आपको डिफाइन करना है. ट्विंस जैसे हमने लास्ट में पढ़े थे कि ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, ठीक है ना. मीन्स एक ही समय में एक माता दो बच्चों को जन्म देती है तो उन दो बच्चों को जुड़वा बच्चे कहते हैं. जैसे देखते हमने देखे थे चिल्ड्रन दैट आर बोर्न टू द मदर, ठीक है, चिल्ड्रन दैट आर बोर्न टू द मदर एट द सेम टाइम, एक ही समय आर कॉल्ड ट्विंस, ठीक है. तो एक ही समय दो बच्चों को जन्म देना उसे हम जुड़वा या फिर ट्विंस कहते हैं. So dear students, I think that are the questions which I explained today in this period. I hope that you understood very well and also done. Okay, ये जो वर्क है आपने कर लिए होंगे ऐसी अपेक्षा आशा करते हैं. I think there is no need to send the PDF of this lessons question answer. Okay, इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है उसके PDF भेजने की जरूरत नहीं है. I think this is sufficient portion for PA first. पीरियोडिक फर्स्ट के लिए सफिशिएंट है. सो जस्ट फ्रॉम टुमारो आई विल टेक द रिवीजन. ओके, सो जस्ट प्रिपेयर द लेसन नंबर 1. ओके, टुमारो आई विल टेक द रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 1. जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर एट योर होम, ठीक है. आपको प्रिपेयर करना है रिवीजन के तौर पर. आप जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, तो लेसन नंबर 1 की जो मेन संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, उसे लेंगे. साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर डिस्कस हम कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में. सो आई थिंक this is sufficient for today. So students, do your study seriously and thank you for watching this video sincerely, carefully. I hope that you do that work in your, you done that work in your textbook as well as notebook also. Okay, so thank you once again for listening to this video. Have a good day to all. Thank you. Thanks.